वेलकम टू वीयू स्टडी वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ENG 505 लैंग्वेज लर्निंग थियरीज का लेसन 16, जिसका टॉपिक है सोशियो कल्चरल थियरी। इस लेक्चर में हम वाइगॉस्की के ZPD कॉन्सेप्ट, हैलिडे की सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स, शुमैन का अकल्चरेशन मॉडल और सिचुएटेड लर्निंग थियरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Q1. What is socio-cultural theory and who developed it? Socio-cultural theory was developed by Lev Vygotsky, a Russian psychologist, in 1934. It emphasizes that social and cultural environments play a vital role in shaping a person's cognitive and psychological development. According to Vygotsky, society provides the tools and support that help individuals adapt and grow intellectually. सोशियो कल्चरल थियरी क्या है और इसे किसने पेश किया? सोशियो कल्चरल थियरी 1934 में रूसी माहिर नफ्सियात लेव विगोत्स्की ने पेश की। इस नज़रिए के मुताबिक इंसान की ज़हनी और नफ्सियाती नशोनुमा में मुआशरा और सकाफ़त अहम किरदार अदा करते हैं। विगोत्स्की का मानना था कि मुआशरा वो ज़रिया है जो फ़र्द को ज़हनी तौर पर सीखने और तरक्की करने के लिए मदद फराहम करता है। Q2. According to Vygotsky, how does learning take place? Vygotsky believed that learning occurs at two levels. First, through social interaction with others, and second, when this external learning is internalized into the individual's mental structure. Thus, learning begins socially and then becomes personal. सवाल 2. वाइगॉट्स्की के मुताबिक सीखने का अमल कैसे वकूपज़ीर होता है? जवाब: वाइगॉट्स्की के मुताबिक सीखना दो सतहों पर होता है। पहले दूसरों के साथ समाजी ताअम्मुल के ज़रिए और फिर ये इल्म फ़र्द के ज़हनी निज़ाम का हिस्सा बन जाता है। इस तरह सीखने का अमल पहले इज्तमाई और बाद में इनफरादी सूरत इख्तियार करता है। Q3. What is the zone of proximal development, ZPD? Answer: the zone of proximal development, ZPD, is a concept introduced by Vygotsky. It refers to the range between what a learner can do independently and what they can do with the help of a more knowledgeable person. Learning takes place best within this zone through guidance and social support. सवाल 3. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगॉट्स्की का पेश करदा नज़रिया है जिसके मुताबिक सीखने वाला वो चीज़ें बेहतर तौर पर सीख सकता है जो वो अकेला नहीं कर सकता, लेकिन किसी माहिर या मददगार की रहनुमाई में अंजाम दे सकता है। यही इलाका असल सीखने की बुनियाद बनता है। Question 4. What was M.A.K. Halliday's contribution to linguistics? M.A.K. Halliday, a British linguist, developed the theory of systemic functional linguistics, SFL, in the 1960s. He viewed language as a resource for making meaning rather than just a set of rules. According to him, language functions on three meta-functions: ideational, ideas; interpersonal, relationships; and textual, organization of text. सवाल 4. M.A.K. हेल्डी का लिसानियात में क्या किरदार है? जवाब: M.A.K. हेल्डी ने 1960 की दहाई में सिस्टमैटिक फंक्शनल लिसानियात का नज़रिया पेश किया। उनके मुताबिक ज़बान कवायद का मजमुआ नहीं बल्कि मानी पैदा करने का ज़रिया है। उन्होंने ज़बान के 3 बुनियादी अफ़ाल बयान किए: ख़याली यानी ख़यालात का इजहार, बैनुश्शख्सी यानी राब्ते के ताल्लुकात, और मतनी यानी बयानिया की साख्त। Q5. What are the main characteristics of systemic functional linguistics, SFL? The main features of SFL are: 1. Language is functional and used to create meaning. 2. Meaning depends on the social and cultural context. 3. The process of using language is semiotic, meaning it involves making choices to convey meaning. सवाल 5. सिस्टमैटिक फंक्शनल लिसानियात की बुनियादी खुसूसियात क्या हैं?
सिस्टमैटिक फंक्शनल लिसानियात SFL की बुनियादी खसूसियात दर्ज-झैल हैं। नंबर 1, ज़बान एक फ़ाली अमल है जो मानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 2, मानी समाजी और सकाफ़ती सियाक़ो सबाक़ पर मुनहसर होता है। नंबर 3, ज़बान का इस्तेमाल एक निशानवी यानी सेमियोटिक अमल है, यानी मानी पैदा करने के लिए इंतख़ाब का अमल। Question 6. What is the acculturation model and who introduced it? The acculturation model was proposed by John Schumann in 1986. It explains that the success of second language acquisition depends on the degree of social and psychological closeness between L1, that is native, and L2, that is target speakers. If learners interact more with the target language community, they learn faster. सवाल 6. अकल्चरेशन मॉडल 1986 में जॉन शूमैन ने पेश किया। इसके मुताबिक दूसरी ज़बान सीखने में कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि सीखने वाले का अपनी पहली ज़बान L1 और दूसरी ज़बान L2 बोलने वालों से कितना सामाजी और नफ्सियाती ताल्लुक़ है। जितना ज़्यादा मेल जोल होगा, उतनी ही ज़बान सीखने में आसानी होगी। Question 7. What are the 5 stages of acculturation according to Brown 1980? According to Brown, the stages of acculturation are euphoria, excitement, culture shock, cultural stress, gradual recovery, full recovery or adaptation. These stages describe how learners emotionally and socially adjust to a new language and culture. सवाल 7. ब्राउन 1980 के मुताबिक अकल्चुरेशन के 5 मराहिल कौन से हैं? ब्राउन के मुताबिक एकल्चुरेशन के 5 मराहिल ये हैं: खुशी या जोशो खरूश का मरहला, सकाफ़ती झटका, सकाफ़ती बतदरीज बहाली, मुकम्मल बहाली या मुताबकत। ये मराहिल इस अमल की नुमाइंदगी करते हैं जिसमें सीखने वाला नई ज़बान और सकाफ़त के साथ खुद को हम आहंग करता है। Question 8. What is situated learning and how is it linked with language socialization? Answer. Situated learning theory was introduced by Jean Lav and Etienne Wenger in the 1990s. It emphasizes that learning is a social process that occurs through participation in real-life communities. Eleanor Och and Bambi Scheiflin extended this idea, suggesting that language and culture are learned together through social interaction and communication. सवाल 8. Situated learning theory क्या है और ये language socialization से कैसे जुड़ी है? Situated learning theory 1990 की दहाई में जेन ल्यू और ईतिन वेंगर ने पेश की। इसके मुताबिक सीखना एक समाजी अमल है जो हकीकी ज़िंदगी की बरादरियों में शिरकत के ज़रिए होता है। एलिनोर ओक्स और बेबी शेफलिन ने इस नज़रिए को आगे बढ़ाया और कहा कि ज़बान और सकाफ़त दोनों समाजी तामुल और बातचीत के ज़रिए इकट्ठे सीखे जाते हैं। ये था लेसन 16 सोशो कल्चरल थियरी। इस लेक्चर से हमें ये सीखने को मिला कि लैंग्वेज लर्निंग सिर्फ रूल्स का प्रोसेस नहीं बल्कि एक सोशल और कल्चरल जर्नी है। अगले वीडियो में हम लेसन 17 डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।